ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪਿਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਸੱਚ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ। ਹਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਆਸਾ ਕਾਫੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਸੱਚ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੜ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਲੋਕਾਚਾਰ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਚ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓਂ ਬਣਿਆਈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਤਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਹੁਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਹੁ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਸਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਗਮੀ ਦਾਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹੋ, ਹਰੀ ਕਹੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੋ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਆਖੋ। ਬੇਅੰਤੀ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਰੀ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਆਖੇ। ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਣਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਣ ਕੀਤੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਆਖਿਆ, ਰਮਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਮ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੁ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ,
महाराज कहते बाहरों जिन्ना मर्जी तुसी किसी नूं नवा लो देवा लिया, अपने अपने सारियां दे कर्म है। कोई पूजा, कोई अर्चा, कोई वर्त, कोई बंदना, कोई फिर संपट भी के अपने नाल छोटी जी एक मूर्ति रखते ने, कहते साडे इष्ट दी है, जे कित्थे जाना है तो उन्होंने लैके जाना नाल डब्बे गुटके विच बंद करके, फिर जिथे पहुँचना उत्थे उन्होंने स्थापित कर देना। महाराज कहते इहदे नालों ते मन नूं संपट कर लो कि बंदा जिथे तुरिया अपने मन नूं नाल लैके तुरे। अपने मन, जे गुरु घर आया तो मन नाल लैके आईए, जे बंदगी इबादत करन आया तो इत्थे मन होर पासे ना होए, मन इत्थे मन संपट जित सत सरनावन भावन पाती तृप्त करे। कोई फुल चढ़ाउंदा है, कोई पत्ते चढ़ाउंदा है। महाराज कहते जिस तरह फुल पत्ते कोमल कूले होंदे ने ना खुशबूदार, इवें तेरी भावना होनी चाहिए अंदर, भावना दे पत्ते होने ते अंदरों तेरा तृप्त होए, हरियावल होए। इनू महाराज जी कहते हैं ये कोई विरला गुरु की शब्द की विचार विचों सिख लैंदा, क्योंकि वो फिर गुरु दे राही सिख लैंदा कि भाणा किवें मनना है। गुरु की ये बख्शिश एड्डी वड्डी है, जिहड़ी भगती वाली है वो भाणे तो बिना नहीं होंदी। ये है आप गवाईए तां शाह पाईए और कैसी चतुराई, ये वाली बख्शिश है। इस जग में निरभौ हर नाम है पाईए गुर विचार, बिन नाम है जम कै वस है। नाम तो बिना डर ही डर है, मौत का डर है, कदम कदम ते सहम है, जमा का डर है, वस है। मनमुख अंध गवार अंदर हनेरा, के मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे। काहे की कुसलात हाथ दीप कूए परै। कादा तू रोला पाउंदा, कादियां तू छाला मारदा, मैं सियाणा मैं जानदा। हाथ च चानण है तो डिगदा तू हनेर माया दे मनमुखताई दे खूह च है। महाराज कहते असी इन्हां विकार किहड़ा खूह है, कदी निंदा दा, कदी चुगली दा, कदी बैर विरोध दा, कदी काम दा। महाराज कहते ये शब्द दी विचार ये नाम दा जासी बचा सकदा है जी। हर कै भाणै जन सेवा करे, बूझे सच सोई। हर कै भाणै सालाहिए, भाणै मन्नै सुख होई। हुण दो विचार ने इन्हां पूरे बंद दे विच, दो तुकां सी एक बंद दे विच दो तुकां पढ़े है। ये पूरे बंद च एक सेवा है तो दूसरा सलाउणा है, सिमरन जिन्हों असी कहते हैं, सिफत सलाह जां पूजा अर्चा कह दीए जां धर्म दे कर्म कह दीए। सेवा उन्ना चिर तक प्रवान नहीं जिन्ना चिर तक गुरु अमरदास जी कहते सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जां सतगुर का मन मनिया ता पाप कसम्मल भन्ने। हुण गुरु दे हुक्म राही कीती हुई सेवा वो प्रवान इसलिए है क्योंकि महाराज जी कहते मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना जितलाया तितला। अगला बचन महाराज कहते तेरे लाले क्या चतुराई। मैं जे सियाणप करा मैं हुक्म ना मन्ना फिर सेवा भी नहीं परवान, साहिब का हुक्म ना करना जाए। महाराज कहते ये चाकर लग्या चाकरी नाले गर्भवाद। वो काहदा चाकर होया, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद। गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध, भाणा मन्ना आप गवाए सेवा करे। वो जिहड़ा बचन विचार रहे हैं, माँ लाली प्यो लाला मेरा, हों लाले का जाया। लाली नचै लाला गावै, तेरी भगत करूं हर राया। पहला इहदे विच सेवा आ गई, फिर इहदे विच भगती आ गई, तेरी बंदगी आ गई। ना सेवा भगती भाणे तो बिना प्रवान है, ना बंदगी भाणे तो बिना प्रवान है। गुरु अमरदास जी ने भाणा मनिया, हर कै भाणा जन सेवा करे, बूझे सच सोई। कि अपनी मत नूं विसार के जे गुरु ने कहता इउं करना है फिर शंका नहीं, क्यों इवें क्यों करना है ये सवाल नहीं। जे गुरु ने कहा ना नित उठ गावो प्रभ की बाणी, क्यों पढ़नी है ये शंका नहीं। सतगुरु जी ने जे कहा जे भला कर फरीदा बुरे दा भला कर, ये सेवा है। गुस्सा मन ना हंडाए, बहुत वड्डी सेवा है समाज की आले दुआले की अपने आप नूं सवारन दी। नहीं होंदा फिर भाणा नहीं मन्निया गया। हर कै भाणा है साह लाई है। एक सिफत सलाह भी जो भी असी कहीए जे भाणा नहीं है, तीरथ नावा जे तिस भावां विण भाणै के नहाए करी। ये सलाउणा भी प्रवान नहीं है वाहिगुरू जी के भाणे तो बिना। जे कर लीए महाराज कहते करी जा, फिर तीरथ तप दया दत्त दान सेवा सिमरन दोनों आ गई। जे को पावै तिल का मान। पर असल गल है सुनिया मनिया मन कीता भाओ। भाणा जिन्हें मान लिया अंतरगत तीरथ मल ना हो।
किड्डी वड्डी बख्शिश है। हर कै भाणै सालाई है, भाणै मन्निया सुख होई। भाणा मन्निया सुख है, जे नहीं मन्नेगा तो फिर रब दा कुछ नहीं बिगड़ना भरावा, गुरु दा कुछ नहीं घटना। तैनूं जीवन दे विच परम सुखां दी घाट इसलिए रहनी है कि असी वाहिगुरू जी दे भाणे तो वांझे रह गए जे। हर कै भाणे जन्म पदारथ पाया, मत उत्तम होई। नानक नाम सलाह तू, गुरमुख गत होई। हर कै भाणे जन्म पदारथ पाया। वाहिगुरू जी दे भाणे विच ही जन्म दा पदारथ। जन्म पदारथ की है? जन्म दा असल लाहा, असल फल कि वाकई कि तेरे जीवन नूं मैं नमस्कार करदा। महाराज कहंदे गुरसिख दे जीवन नूं मैं भी झुक के कहना कि मोको कीजै दास दास दासण को, हर दया धार जगन्नाथा। जिन्हें जगत दे नाथ वाहिगुरू दे सिमरन विच हुक्म विच जीवन बतीत करता, मैनूं उहदे दासरे दे दासरे दा भी दासरा बनना कबूल है। किड्डी वड्डी बख्शिश है गुरु रामदास करदे। इनू महाराज गुरु अमरदास जी कहते हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई। मत उत्तम हो गई, पता लग गया भाई जीवन दे विच मैली मत असी लई फिरदे हां। असी एक पासे गुरु की गल भी करते हैं, दूसरे पासे गुरु की मनते भी नहीं। साडी मत होछी है। महाराज जी कहते मेरी मत होछी, मैं राम विसारियो। मैं विसार दिता। मेरा जिहड़ा जीवन है, मेरे अंदर दी अवस्था जिहड़ी है, मैं रब नूं विसारन वाली बना ली। महाराज जी ये अवस्था दसदे ने कि सतगुरु जी कहते नानक नाम सलाहे तो गुरमुख गत होई। पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम सलाउणा ही, गुरु दे सन्मुख गुरु दा भाणा मनना ही जीवन की गत मित की प्राप्ति है जी। आसा महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू करता सचयार मैढा साईं, जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ। मेरी मत बौरी मैं राम विसारियो। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का हुण बचन शुरू होंदा है। महला चौथा है। अज सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का बाबे का विआह है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे असी ये लफ्ज़ वरतते हैं बाबे का विआह पंजाब दे विच आम करके श्री गुरु नानक साहब महाराज जी दे पावन विआह दियां आप सब नूं मुबारकां बधाइयां। सच्चे पातशाह हजूर जी का ये दिन बहुत चाह उमा दे नाल सुल्तानपुर लोधी भी ते बटाला कंध साहब ये दोनों पासे, क्योंकि बेर साहब तो ये बरात का रूप बन के संगतां तुरदियां ने ते बटाले कंध साहब विखे इस संगतां दा हुजूम तुर के वहीरां दे वहीर, ट्रक्कां दे ट्रक, ट्रालियां दे ट्राले उत्थे तुरे ही जाते हैं। तुसीं इन्हां दिनां दे विच जे कंध साहब दर्शन करन जाओगे तो सड़कां ते संगतां दे हुजूम तुरे हुए ने जिहड़े बाबे दे विआह वल तुरे ने। कंध साहब ये विआह 1487 1487 सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी का माता सुलखणी जी दे नाल होया। मूल चंद जी की जिहड़ी धी राणी ने मूल चंद जी के घर ये विआह होया। मूल चंद जी का घर गुरुद्वारा कंध साहब तो बिल्कुल 15-20 कदमां ते अगे है। पर ये जिहड़ा कंध साहब गुरुद्वारा सी ये बरात नूं ठहरन दा थां सी। इत्थे आके सारे गुरु नानक साहब परिवार ठहरेगा तो माता सुलखणी जी का घर अगे सी ते इत्थे वो विआह दी सारी रस्मां होईयां ने। पर जिस कंध के थल्ले बैठे सन ते कोई कहंदे शरारत भी हुई, साजिश भी हुई, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी ने वो पुरानी आउंदी हुई सारी रीत नूं रोक दिता, ख़त्म कर दिता कि पुराना जो कुछ चल रहा सी रिवाज रीति रिवाज। क्योंकि शुरू तो ना जनेऊ सतगुर जी ने वो धारण किया जिस जनेऊ नूं आम धारणा विच खतरी दे पुत्र नूं ब्राह्मण आके पाउंदे ने। होर भी बड़ा कुछ सी जिहड़ा सतगुर जी दे। और ये भी सिख इतिहास से जिक्र है सतगुर जी ने अग दे दुआले फेरे नहीं लए। सतगुर जी ने एक ओंकार कागज़ ते शब्द लिख के उहदे दुआले सतगुर जी ने ये भी आम रवायतां जां तुसीं नानक प्रकाश पढ़ो वेदी दे दुआले सतगुर जी ने ये फेरे लए ने।
और सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ਨੂੰ एक उसी थां ते आके बजुर्ग औरत कहती कि बच्चा थोड़ा परां हो के बैठ, तेरा अज विआह कित्थे, तेरे ते कंध ही ना ढह पे। महाराज जी ने सहज सुभाए कहा कि ये कंध तुहाडे लई कच्ची है, पर अज तो बाद ये कंध कदी नहीं ढहेगी। क्यों ही नहीं पता कि जगत गुरु बाबा उत्थे आके बह गए ने। वो तो ढहंदियां होयां नूं भी उसारण वाले ने, आसरा देण वाले ने। एक प्रतीक है कंध साहब गुरुद्वारा बटाले दा कि जे वो जरजरी जलजली कंध, ढहण वाली मिट्टी की कच्ची कंध, जे वो बारी स्वरूप गुरु नानक साहब जी की स्पर्श नूं, गुरु नानक साहब जी के अक्स नूं, गुरु नानक साहब जी के बैठे हुए नूं, भाव उन्हां दी हाज़री नूं कबूल करदी है। महाराज जी कहते हैं कि ये कदी नहीं ढह सकती। कच्चियां भी सतगुरु जी ने पूर्ण रूप दे विच पक्कियां करतियां। ते साडे भी मन जिहड़े ढहिंदे ने ना, जिहड़े साडे आसरे साडे मन दे अंदर कि असीं कदी भी ढह जावांगे, की हो जाएगा। बस आसरा गुरु नानक साहब दा लईए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दी ये बहुत वड्डी बख्शिश है। कंध साहब इलाका भावें वो थां पुरातन थां है, अज भी पुरानियां भीड़ियां गलियां ने उत्थे, उत्ते तक तुसीं कारां गड्डियां नहीं ले जा सकदे। भीड़ियां गलियां दे बाज़ार ने, वो पुराना सारी रवायतां, उत्थे सतगुरु जी बैठे, उत्थे ही विआह होया। अगे माता सुलखणी जी का घर है, मूलचंद जी का, जिथे सतगुरु महाराज जी फिर बाद च गए। सो ये दो थां उत्थे बहुत प्रचलित ने। जे समा बने तो आप भी जाओ तो बच्चों भी दर्शन दीदारे करवा के लियाओ। आओ जी हुण शब्द वल तुरीए। आसा महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये शब्दां दे लड़ी जिहड़ी है, पहला शब्द जिहड़ा हुण असीं पढ़न लगे हां, ये शब्द आम करके सोदर विच पढ़िया जांदा है जी। शाम वेले तू करता सचियार मेढा साईं। इस शब्द की आरंभता आसा महला चौथा घर दूजा है। गुरु रामदास जी का ये शब्द है आसा राग दे विच, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बस ये सारे शब्द अज पढ़ांगे ना असी, वाहिगुरू जी के आसरे परने दे ने कि मैं सारे आसरे छड्ड दिते, मैं सारे पासियों छड्ड के ना मैं एक वाहिगुरू तुहाडा ही आसरा पल्ला लिया। पर वो लैण वास्ते गुरु का भाणा मनना पएगा। गुरु के भाणे के दरवाजे विचों लंघ के, सो दर तो लंघ के उस सो घर की प्राप्ति होएगी। तू करता सचियार मेढा साईं। मेढा लफ्ज़ मेंढा भी पढ़ते हैं, ये लहिंदी का लफ्ज़ है जी। लहिंदी वाल पाकिस्तानी वाले पासे, पुराने पंजाब वाले पासे मेढा कहते मेरा, मैं अपना तैनूं मनिया, पूरा विश्वास किया। तू करता है सचियार, सच्चा है, जो तौ भावै। ये भी भाणे का शब्द, जो तुहानूं चंगा लगे सोई थीसी। ये भी लहिंदी लफ्ज़ ने कि जो तुहानूं चंगा लगेगा उही होना है, उही होवसी, जिन्हों असीं कहते हैं थीसी। होवसी ये मुल्तानी लफ्ज़ ने। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हों पाई। तो जो तू झोली पाना है मेरी वाहिगुरू, मैं उन्होंने ही प्राप्त कर लेना है। सबनी छाला मारियां करता करे सोई। बस देना वही है जो तुहाडे हुक्म विच मैनू मिलना है। रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। सब तेरी तू सबनी ते आया। किड्डा कमाल दा बचन है। एक तिक तोकी गुरु रामदास जी दी। सारी कायनात वाहिगुरू तुहाडी है ते सारी तुहानूं ध्या रहे ने। कमाल है, सब ही है। किसी नूं होर आसरे जिन्हों मर्जी मिल जाण, जिन्हें मर्जी मिल जाण, पर एक अडोल आसरा वाहिगुरू तुसी हो। बस सब तेरी तू सबनी ते आया, सारे तुहानूं ही ध्या रहे ने। जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाए। सारे ध्याउण वालियां नूं ये खजाना नहीं मिलता, किसी विरले नूं मिलता जिहदे उत्ते तुहाडी कृपा होए। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया। गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए। मनमुख कौन ने? मन दी मनण वाले, अपनी करन वाले, हुजतां करन वाले। गुरमुख ने गुर कै भाणे चलन वाले, गुरु दी मनण वाले, सतगुर दा भाना मनण वाले। ये कहण वाले तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदारथ नानक मांगै। वो कहण वाले कि सतगुरु जी दे भाणे दे विचों सब तो वड्डा रस आउंदा है। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, नहीं तो मनमुखा ने यह गवा लिया है। और सतगुरु जी का यह बचन पढ़ते हैं कि इस धरती ते बहुत कुछ ऐसा है
ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਸੇ ਅਗਮੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखूं तद तू। फिर भी भगता ने जब हम होते रविदास जी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। किड्डी अवस्था है, मैं खत्म कीती। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। मुख दी गल किसी नूं भवाटली दे के गवा दिता है, तो किसी नूं गलवकड़ी लैके मिला लिया। ये सब तुहाडी रज़ा है जी। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। तुसी एक बहुत असीम दरिया हो, तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहां। जे मैं अंत लैण वास्ते तुर पवां तो फिर दरिया का अंत कित्थों। मच्छी तो पत्थर चट के वापस मुड़ेगी। लूण की डली कहती असी समुंदर की डुंगियाई नूं मिण के आईए। एक डली कहती तू जा भाई, मैं इत्थे फिर उड़ीक करदी हाँ तेरी। एक गई वो वापस ही ना आई क्योंकि वो खुर गई समुंदर दे विच। साडा ये हाल है, असी रब दा अंत पाउण चलांगे तो साडा भी कुछ नहीं, असी भी उहदा ही रूप हो जाएंगे। इस करके तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, सब कुछ तुहाडे तो मिलना है। यही तो असी पढ़ते हैं ना कि ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले। तू वाहिगुरू दे नाल रह, क्यों हर नाल रहो तू मन मेरे दुख। जे तेरे दुख विसर जाणगे फिर तेनू चेते आएगा, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे। तेरे घर सब कुछ है। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। कोई दूसरा होए जिहदे कोल सब कुछ होए। जी जंत सब तेरा खेल, जीव ते जंत बने ने, बन के फना होवांगे असी। ये तुहाडा बनाया होया खेड है। सानू दुख सुख लगदे ने पर ये रब जी तुहाडा खेड है। विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जे जद विजोग दा हुक्म आ जाए असी इत्थों तुर पैंदे आ, जद संजोग दा हुक्म हो जाए असी फिर जम पैंदे आ। और यही वाहिगुरू जी तुहाडा हुक्म है, जद तुसी मिलाउणा चाहो तो तुसी संजोग पैदा कर दो। राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। तो जब तुसी विजोग पैदा कर दो फिर कुड़ियार कुड़ियारी जाए रलें सचियार सिख बैठे सतगुर पास। फिर असी कूड़ियां दे विच ही रले रवांगे, नहीं मिलांगे जी। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। यही है कि एक पासे बाबा फरीद कहते कि पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लहंसे साईं कन्नो दात। कन्नो दा मतलब साईं वल्लों, साईं पासों। साईं उन्होंने वाहिगुरू दात देगा जेड़ा जागेगा, जेड़ा उदम करेगा, जेड़ा इस मार्ग। ठीक है, गुरु नानक साहब कहते उदम भी है पर कल्ले उदम दे उत्ते माण ना कर लियो, क्योंकि माण करने वाले बहुत ने। हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गावार। पर यह माण नहीं करना कि असी कीता। जेड़े करन वाले ने उन्होंने महाराज जी बाबा कबीर साहब भगत जी कहते मूर्ख गवारता वाली गल है। वो कहते असी करते हैं, असी कर रहे हैं। नहीं, करन वाला वो है। तो जद भगती दे मार्ग ते तुरदा है कोई, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके हैं शरीर, क्या जानो किछ हर किया भयो कबीर कबीर। इस अवस्था दे मालक होईदा। जिस नो तू जाना है दा मतलब ये है कि जिदे उत्ते वाहिगुरू दी कृपा हो जाए ना। दाती साहिब संदियाँ क्या चलै तिस नाल, एक जगंदे नाल हन एक ना सुतियाँ दे उठाल। जिस जान आहे दा मतलब जिन्हों जनाएगा तू वाहिगुरू आप होश देगा।
आप जगाएगा। तू आप ही उद्यम करो करावो ठाकुर भेटत साधु संग। ये है जिनको नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाना है। जिन्हों तुसी जनाना चाहोगे वही जान सकेगा, सारे नहीं जान सकणगे। हर गुण सद ही आख वखाना। वो सदा ही फिर वाहिगुरू के गुण गाणगे, आखणगे, वखाण करनगे, विचार करनगे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया। बस सुख ही त्यों ताइयों तो असी इत्थे बैठे हैं ना, सानू पता है सुख मिलता है इस इबादत विच। भावें घड़ी पल खिन मन टिके, पर वो सुख भी असीम होंदा है, उसकी प्राप्ति लई असी आउंदे हां। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर। इत्थे धक्का नहीं चलना। महाराज कहते कि नहीं मैनू ही मिलनी चाहिए दात, मैं ये कर रहा, मैं जप रहा, मैं इन्ने समय तो जप रहा, सिमरन कर रहा, ये फिर मैं ये तो सहज देण वाला वो है। ये तो पता ही नहीं लगेगा। एक नूं सुत्तियां सुत्तियां दात झोली पा देगा, एक जड़ियाँ सारी सारी रात जाग जाग के भी कर रहे, कई बारी उन्हां दी झोली भी नहीं पैंदा। इस करके महाराज जी कहते हैं ये बंदगी की खेड दे विच कदी धक्का नहीं। ये इस मार्ग ते कदी नहीं जी मैं इन्ने पाठ कर ले, मैं इन्नी बंदगी कर ली, मैं इन्ना सिमरन नहीं। सहजे ही हर नाम समाया। जद उहदी मौज होएगी, वो सहज रूप दे विच ही नाम साडे मन विच समा देगा, असी नाम दा ही रूप हो जाएंगे। पर ये उहदे हुक्म विच ने जी। तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुध बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख जान सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। तू आपे करता तेरा किया सब होए। ये भाणा मनण दी सब तो वड्डी अवस्था है। करन वाले वाहिगुरू तुसी हो, तुसी जो कर देना उही होना है। तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तुहाडे तो बिना कोई होर कर ही नहीं सकता, कोई अवर है ही नहीं। तू कर कर वेखै जाना सो। इवें अनजान नहीं करते तुसी, सब वेख के कर रहे हो, सब जान के कर रहे हो। पता है तुहानू की होना है की नहीं होना। एवें नहीं कि तुसी देता सब कुछ, नहीं, तुसी देख रहे हो। तू दाना, तू अबचल, तू ही दाना का मतलब दान देण वाला। अबचल का मतलब कदी ना किसी दे प्रभाव च आउण वाला नहीं। तू ही जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोलै नाही। तां मन कैसी ताती। मनु तां डर होए ना कि मैनू पता होए कि रब कदी किसी नू पुछ के जां किसी प्रभाव च आके दिंदा नहीं। नहीं, तू दाना तू बीना, मैं विचार क्या करी। तू बीना का मतलब देख के देण वाला। बीना, बीनना, ये लफ्ज़ बिहारी वाला, पटने बिहार बोलिया। बीनो देखो, वो देखदा है, देख के दिंदा है। तू कर कर वेखै जानै सोए। जानदा है सब कुछ। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। गुरु दे राही ये दात अंदर नाम की प्रगट होंदी है, क्योंकि गुरु ही सोझी दिंदा है कि वाहिगुरू दे भाणे विच ही सुख है जी। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई। किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहा समाई। महाराज कहते गुरमत के सिद्धांत ते कुछ माड़ा चंगा नहीं होंदा, बस धड़े राजनीति सानू माड़ा चंगा बना देंदी है। असी धड़े बना लेंदे हां। ये ऐसी बहुत महाराज जी का ये शब्द बड़ा कीमती है। ये राजनीति सतगुरु जी कहते धड़े भी, पर ये पहला धड़े रिश्तेदारां दे, परिवारां दे, फिर अगे जाके सतगुरु जी ने यदी गल की है। सतगुरु जी का ये वचन धन गुरु रामदास जी का एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला दूजा। अब राग आसा घर दूजा महला चौथा। घर दूजे विच गाउण बजाण की हदायत है। गुरु रामदास जी का वचन। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई। किसी ने अपने मित्र नूं ही सब कुछ मान लिया, किसी ने अपने पुत्र उत्ते ही पूर्ण विश्वास रख लिया। पर सच्ची गल यह है, बुक दी गल असी अगे रहाओ दी तुक विच समझांगे
कि धड़ा करना ठीक हुंदा है, विश्वास करना ठीक हुंदा नहीं हुंदा। महाराज कहते हुंदा नहीं हुंदा ये बात दी गल्लां, बस इन्हां दसांगे किस हद तक ठीक हुंदा ते किस हद तक बुरा हुंदा। एक हद नियत कर दित्ती महाराज जी ने, क्योंकि गृहस्थी जीवन दे विच धड़े हैगे, परिवार हैगे, सब कुछ हैगा, पर महाराज जी ने एक हद दी सीमा, एक सीमा खिंच दित्ती कि भाई इत्थे तक अपने मन नूं सुचेत रखी। ये ना होए कि हत्थ विच गफलत ही आए, तेरे उदासीनता ही आए, तू परेशान ही हो जाए, कख ना आए, बदनामी तेरे हाथ आए, वो काम ना कर लें। किसी ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किसी मित्र नाल कीता, किसी ने पुत्र नाल, किसी ही धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई, किसी दी कुड़माचारी दे विच भी मैनूं सानूं परवाह नहीं, साडे कुड़म साडे वाला, किसी ने सक्के जवाई दे उत्ते भाव अपने जवाइयां दे नाल धड़ा। किसी ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, अपने स्वार्थां करके किसी ने सरदार ते चौधरीआं दे नाल धड़ा बना लिया। पर गुरु रामदास जी कहते हमरा धड़ा हर रहा समाई। साडा जिहड़ा अनंत अनंत धड़ा निहचल सदा रहण वाला, जिहड़ा अब चल नहीं हिलण वाले, वो धड़ा है वाहिगुरु जी दे नाल, जिहड़ा सदा ही जुड़िया रहेगा जी। हम हर स्यों धड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख धड़ा अवर न कोई, हों हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। ज्यों ज्यों असी नाम तो टुटदे जावांगे, असी संसार दे धड़े बनाने शुरू कर दांगे। ज्यों ज्यों असी निरंकार दे नाम विच जुड़ना शुरू कर दांगे, त्यों त्यों असी वाहिगुरु दे नाल जुड़ के सब को मीत हम आपन किया, हम सबना के साजन। समझो इस गल नूं, धड़े दा मतलब की है कि नहीं जी मेरा पुत्र चंगा ते फलाणे दा पुत्र माड़ा, भावें वो चाचे दा ताए दा क्यों ना होए। महाराज कहंदे इत्थे माया वरत गई। एक घर दे विच दो नूहां ने, जिहड़ी सੱਸ है छोटी नूह नूं कहंदी भी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बराबर बदाम भिओ दे, फलाणा कर दे। जे वो कहे नहीं जी मैं 5 बदाम वध अपने पुत्रां लई भिओवांगी ते मेरी जिहड़ी दूसरी है जठानी दरानी जो है ਉਹਦੇ ਲਈ मैं घट भिओवांगी। महाराज कहंदे लो जी आ गई माया, ये धड़ा आ गया। इस गल नूं समझो, गृहस्थ जीवन भी सतगुरु जी ने बड़ा खूबसूरत जीवना सिखाया कि गुरमत दे दायरे ते तुरन वाला वो कदी धड़ा नहीं करता, वो कदी इस तरह का वितकरा नहीं रखता, वो सब बराबर चलता है, कोई नहीं, क्योंकि देण वाला करतार है, करन वाला करतार है। बस ये साडी मत ना पिठे, बस ये इस मत ते पर्दा ना पे। महाराज जी ये समझाउणा चाहुंदे ने, हम हर स्यों धड़ा किया मेरी हर टेक, जिन्हों वाहिगुरु ते पूर्ण विश्वास है, मैं हर बिन पख धड़ा अवर ना कोई। मेरा क्यों जब धड़ा ही मुक गया, फिर सबको मीत हम आपन किया, हम सबना के साथ विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बेरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। अबर ना कोई हो हर गुण गावा असंख अनेक, बस वाहिगुरु दे गुण गाउंदे गाउना मेरे मन दे विच ये फुरना ही निकल जाए, ना को बैरी ना ही बेगाना वाला रहाओ। जिन स्यों धड़े करह से जाहे, झूठ धड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों धड़ा किया जिसका कोई समरथ नाहे। जिन्हां नाल धड़े कीते वो सारे चले जाणगे, जिन स्यों धड़े करें से जाहे। भावें जिउंदे जिउंदे जी भी महाराज कहंदे सब मुकर जाते हैं, कई मुकर जाते हैं, कई कहंदे आ ये होया सी सिखां ने धड़ा कर लिया सी साडियां हिंदुस्तान दियां सरकारां नाल, क्या सी कि तुहानूं थां देवांगे, तुहानूं बोली बोलदे क्षेत्र देवांगे, सब कुछ देवांगे। जब सीधी गल आई ना दिल्ली के गुरुद्वारे सीसगंज साहब लैण दी, महात्मा गांधी कहंदे तुसीं कौन ते मैं कौन। जवाहरलाल नेहरू नूं क्या कहंदे, उस समय हालात और थे, अब हालात और हैं। मुकरन वाले हर किस्म के होंदे आ, जिथे मर्जी देखो। महाराज कहंदे इस समय समय दे नाल सब कुछ, जिन स्यों धड़े करें से जाहे, झूठे धड़े कर पछोताहे। पछताउंदा है बंदा झूठ दे धड़े कीतियां, थिर ना रहे मन खोट कमाहे। खोटा मन विच हुंदा है ते कुछ भी थिर नहीं रहिंदा। हम हर स्यों धड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। उस वाहिगुरु वर्गा धड़ा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिहदे नाल मेरा संबंध है
वो अडोल है, वो कदी नहीं डोलदा, वो सदा ही नाल है। सो सतगुरु प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू लय छड़ाई। ये धड़ा सब तो असीम है। इस करके गुरु रामदास जी कहते असी सारे आसरे परने छड़ के एक वाहिगुरु दा ही आसरा लिया है जी। ਇਹ ਸਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝੈ ਗਾਵਾਰੀ, जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सवारी। वो धड़ा बनाओ, ये भी सवरे ते ओ भी सवरे, ये ना होए वो बना लिया इधरों भी गए ते ओ भी गया, दीन भी गए ते दुनी भी गई। महाराज कहते दुनी करके दीन गवा लिया, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना 40 साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। बाबा कबीर साहब का कितना कमाल का बचन है, जान बूझ के बावरे तैं काज बिगाड़ियो। महाराज कहते इस गल नूं समझिए असी, ये सब धड़े माया मूँह पसारी, माया कौ लूझेगा वारी। कोई कोई इतफाक थोड़ी है, सिर्फ माया दी भुख है, धड़े सारे माया दे पिछे ही है। जन्म मरह जूए बाजी हारी, सारा जन्म हार दिता, हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सवारी। वो धड़ा वाहिगुरु दे सिमरन दा, वाहिगुरु दे सच पक्ष दा, जो गुरु ने क्या उवें होना चाहिए, गुरु दे बचन दे उत्ते अमल होना चाहिए। ये धड़ा है गुरु दा आख्या कमाया जाना चाहिए, ये धड़ा हलत पलत सवारदा है जी। कल युग में धड़े पंच चोर झगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मिलाए, हमरा हर धड़ा जिन ए धड़े सब गवाए। कल युग में धड़े पंच चोर झगड़ाए। कल युग विच जिहड़ा धड़ा है पंजां चोरां दे झगड़ा, ये जिन्हें विकार ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सिर चढ़ के बोलते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, ये वधदे ने अभिमान, जिसनों कृपा करे ते सतसंग मिलाए। महाराज कहते संगत विच बैठ के सोचिए भाई केड़ा वैर विरोध है साडा, केड़ा वैर विरोध है तो एक ही गुरु के संगत प्यारे, असी तो एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। बस इस संसार की बनाई हुई रीत विच असी धड़े बनाई बैठते हैं। असी एक दूसरे तो किस बाबत नफरत, कोई जमीन के टुकड़े, कोई वट का रोला, कुछ भी नहीं। क्यों असी इस तरह के धड़े। महाराज कहते संगत एक है, सत संगत एक वाहिगुरु का रूप है। हमरा हर धड़ा जिन ये धड़े सब गवाए, मेरा वो धड़ा उहदे नाल है जिन्हें सारे धड़े गवा दिते जी। मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजै तैसा खावे, जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे। मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे, मिथ्या दे विच दूसरे धड़े बनते जाते हैं। बह पावे का मतलब बना लेने असी पा लेने। पराया छिद्र अटकल है, अटकल है का मतलब दूसरिया के अवगुणों नूं बोली जाना, अपना अहंकार वधावै, ये करते हैं। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानक का हर धड़ा धर्म, धर्म ते विश्राम भाई साहब जी ने दिता है। तुसां भी इस विश्राम नूं थोड़ा चेते रखना है। जन नानक का हर धड़ा धर्म, कि साडा जिहड़ा धड़ा है वो धर्म दा है। ते धर्म की है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। एक निर्मल करम होए साडा गुरु दे हुक्म नूं मनना, दूसरा नाम जपना। सब सृष्ट जिने आवे, जिन्हें ये वाला धर्म निभा लिया, सारी सृष्टि उहदे पैरां 'च झुक जाती है, उन्हें सारी सृष्टि नूं जित लेना है जी। आसा महला चौथा, हिरदै सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया। ये भी गुरु रामदास जी के बड़े कीमती शब्द ने, जिन्हों असी छंत भी पढ़ते हैं महाराज जी दे कि गुर अमृत भिन्नी देहोरी अमृत बुरके, राम राजे जिना गुरबाणी मन भाईया, अमृत छक छके। गुरु आप ही अमृत का मुजस्मा है, तो जिहड़ा गुरु नूं चेते करदा है वो भी अमृत का मुजस्मा हो जाता है।
ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ। ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਥ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਆਲੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ ਰਹਾਉ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ, ਜੀਵ ਆਤਮਾਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਹਾ ਘਟ ਅੰਤਰ। ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨਾ। ਬੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਗਾਈ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭੈਣ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਪਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਵਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਰਾਗ ਅੰਦਰ ਗੱਚ ਭਾਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ? ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾ ਚਾਓ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਵੈ ਬਿਖ ਮਾਇਆ, ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਭਾਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਈਏ, ਪੀ ਰਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਖ ਬਿਖ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਆਪ ਪਿਆਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਬਣਾਏਗਾ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣਾ ਜਰੀਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖਿਆ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ
ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖਸਾਰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵਈਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਖ ਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਚੌਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਖ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਭਾਗ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਭਾਗ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰ